using, okay, so I have told you that if you're using a strong oxidizing agent, it is going to convert us salt into ick salt. Okay, that means it is going to convert Fe plus 2 into Fe plus 3 and FeSO4 into Fe2SO4 whole thrice. So in all the case here, it is converting from plus 2 to plus 3. This is what the change is going on. If I am taking ferrous chloride, again the change is going to be from plus 2 to plus 3. If I am taking ferrous oxide, again the change is going from plus 2 to plus 3. If I am taking copper, it is going from plus 2 to plus 3. For stannous, it will convert into stannic. For plumbers, that is your lead plus 2, it is going to get converted into plus 4. So this is a basic conversion you should know. Hg plus Hg2 plus 2. So for individual, its oxidation number will be plus 1 and it is be converting into Hg plus 2, that is your mercury. The second thing the oxidizing agent does is it is going to convert 8 salts into 8 salts. For example, if I am taking nitrite, so in the case of nitrite here, NO2 minus, where the oxidation state is your plus 3, it is going to get converted into nitrate, that is NO3 minus. From sulfite, that is your SO3 2 minus, it is going to get converted into SO4 2 minus. So here oxidation state is plus 4, here it is plus 6, changes of plus 2. In the same way, for oxalate, it is going to convert into carbon dioxide, जिसके बारे में हम already बात कर चुके. In the case of oxalate here, C2O4 2 minus, the oxidation state is plus 3 here. And for this carbon dioxide, it is your plus 4. And I have already told you how to find out the N factor for the for oxalate salts. If you are getting this kind of salts, then also you have to just use the formula total number of carbon and the change in oxidation number, if any. If there is any kind of change in the oxidation number, then you can use this one. They can give you a lot of number of salts combined, but just use this formula and you will get the N factor. So this whole chapter is mostly uh, is about to tell you how to find out the N factor. So till here, everyone's note is completed or not? Let me know. Okay, each and everyone's notes should be completed till here. Like if I'm saying for everyone, that means Vivek, Terence, Harshan, Dhruv, okay, and Smarnika, Shaktika, Shrikar, everyone's notes should be completed. Okay, so this OneNote is giving me a lot of problems, so I am using this another uh, OneNote. Just give me 1 minute. Okay, so you have to continue from there only. So we have talked till oxalate, and I have given you the example of Na2C2O4 dot 2FeC2O4. यहाँ तक हमने example कर लिया था. So let's continue from like later on. Suppose if you have the example here, let's say SnC2O4, and you have to find out the N factor of this particular compound. So how you are going to find out the N factor? Again, the formula is number of carbon atoms plus, next is going to be your change in oxidation number of the metal, if any. ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा, अगर है तो आप लिख दो. तो number of carbon atom, तो you have to
change in oxidation number, you already, I have told you that stannous is going to convert into stannic. That means Sn plus 2 is going to convert into Sn plus 4. So here the change in oxidation number is going to be 2. So here it breaks down into Sn plus 2 and C2O4 2 minus. So ultimately here it will be 2 plus 2 and answer will be your 4. So for this particular compound, N factor will be here 2. Okay, write down this. If I am taking FeC2O4 and I have to find out the N factor for this. So number of carbon atom is 2. Change in oxidation number, again I have told you, always Fe plus 2 is going to get converted into Fe plus 3. So it will be plus 1, and for this one N factor is going to be 3. Got it? Let's say I have Fe2C2O4 whole thrice. If I am using this particular oxalate species, so this is your ferric oxalate. Okay, so it is already, ferric means it is already in its plus 3 oxidation state. So if you will find out the यहाँ पे oxidation state, you know that C2O4, this whole is your minus 2. So 3 2s are 6, that is total minus 6. So this will be total plus 6. So for this is for 2 atom. That means for 1 atom it is going to be plus 3, because divided by 2 kar do. So you will have plus 3. So plus 3 is already oxidized. You cannot oxidize plus 3, iron plus 3 further. तो यहाँ पे there will be, like if the question asks you कि how many n factor is there, तो अब आप कैसे निकालोगे? क्या आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो? What will be the n factor here? Everyone's screen is visible to you people, na? Yes, ma'am. So tell me, what will be the n factor here? हाँ प्रशस्ति, जो मैं चेंज लिखवा रही हूँ मेटल का, that is going to be the most common one. Yes, Sampada, good. Ma'am, another screen is visible, ma'am. Okay, 1 second. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, the thing is that if you want to answer me, okay, answer me in the co-host one, just let me join from the another account also, because in this I am unable to read your messages. Okay, so if you want to message me anything, message me in the one which is shown here as co-host. ठीक है, co-host पे मुझे message करो. Okay, so what will be the oxidation number here? Now it is no longer can further be oxidized. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे काम नहीं होगा, वो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब यहाँ पे लिख भी लो, इट इज ऑलरेडी इन मैक्सिमम oxidation state. So for that you will consider it as a simple double salt. डबल सॉल्ट के लिए हमने क्या बोला था, इस तरीके के जो भी आपके पास सॉल्ट होते हैं, तो जो भी उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं आप उनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. इफ यू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट, याद है? एन फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो आपको यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6, क्योंकि आयरन पे चार्ज होगा +3, C2O4 पे चार्ज है 2 माइनस, तो दोनों को आप हमने क्या किया था 3 into 2, तो आंसर हो जाएगा 6. तो अगर कोई इस तरीके का सॉल्ट आ जाता है, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेथड. गॉट इट? नाउ मैम एक बार रिपीट करोगे प्लीज? दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेटा, जो आपको एन फैक्टर में निकालने के लिए मैंने रूल्स बताए थे. हाउ कैन यू फाइंड आउट द एन फैक्टर?
तो उसमें सॉल्ट के लिए बताया था कि अगर कोई भी आपके पास डबल सॉल्ट है तो जो भी उसके ऊपर चार्ज आएगा आप क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एन फैक्टर। इफ यू रिमेम्बर, जब मैं ABC वाला लिखवा रही थी उसमें ये चीज बताया था, उसमें सॉल्ट्स के अंदर आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। हाँ ओके मैम। ओके, इट इज इन दैट वन कि सॉल्ट अगर होगा, बिकॉज नाउ दिस इज सिंपल सॉल्ट, आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आप इसका एन फैक्टर नहीं निकाल सकते। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कभी, अब मैंने ऑक्सलेट के इतने सारे बता दिए हैं, तो अब इस टाइप का कुछ आ जाएगा तो आपको लगेगा कि इसको ऐसे ही करके एन फैक्टर निकाल लो, तो वो गलत हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज, तो अब फर्दर ऑक्सीडाइज यहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है। Ki को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। हमेशा ध्यान रखना है Ki पे यहाँ -1 होगा, I2 में यहाँ पे 0 होगा। ओके, अगर एनीवेज कोई भी हेलाइड गिवन है, if any halide is given to you, so in that case X minus will be oxidized to X2 always until and unless mentioned। अगर कुछ नहीं गिवन है, अनलेस नॉट गिवन, कुछ भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और हेलाइड है तो उसको हमेशा आपको X2 में चेंज करना है। तो यहाँ पे Ki है, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो I2 पे क्या आ जाएगा, 0। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, H2S जो है इट विल ऑलवेज बी ऑक्सीडाइज टू सल्फर। यहाँ पे -2 है, सल्फर पे 0 है, तो मतलब -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे आपने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हो, यूजुअली हम KMnO4 और K2Cr2O7 ही कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे -2 से 0 पे जा रहा है, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी लिख लो अनलेस प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। मान लो प्रोडक्ट कुछ और दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली करोगे, बट अगर H2S के लिए आपको सिंपली इस तरीके से पूछ ले, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट विल ऑलवेज गो टू S अगर कुछ प्रोडक्ट में नहीं गिवन है। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना होगा तो एन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, -2 से 0 जा रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, तो एन फैक्टर विल बी योर 2। देन 6 H2O2, H2O2 तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, इट इज गोइंग फ्रॉम -1 to 0। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। लास्ट ले लो IO3-, ये भी आपको बहुत जगह ऑब्जर्व होगा और कन्वर्ट हो रहा है IO4- में। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5 आएगा, यहाँ पे आयोडीन का निकाल रहे हो +7, +5 से +7 में आपके पास चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर एन फैक्टर निकालने वाले हो तो कितना आएगा, 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये IO3 वाला चेंज जो है जेई में पूछा गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सो राइट डाउन दिस। And do this question. Okay, so question is saying that how many moles of K2, if anyone wants to send me any message, co-host में भेजना, ठीक है? Host में I am unable to read your messages, so please make sure that. Okay, so question is saying that how many moles of K2Cr2O7 are required to oxidize 12 moles of SnC2O4? अभी आपको सब चीजें पहले से ही पता है. You know that K2Cr2O7 will always get converted into chromium +3. आपको ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड इसका एन फैक्टर भी आपको पता है कितना होगा, 6। यहाँ पे +6 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें,
+3 में, बट 1 एटम के लिए 3 चेंज हो रहा है, तो 2 एटम के लिए कितना होगा 6। तो ये दिस इज ऑलरेडी नोन। एंड यू नो दैट कि जो SnC2O4 है, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा SnC2O4 को, किसमें, Sn+4 में, प्लस CO2 में। बट वो सब आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके एन फैक्टर की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 12 मोल्स ऑफ दिस मच। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उस पर इतना जाने की जरूरत है ही नहीं। इसका एन फैक्टर निकालोगे तो आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन 2 है, Sn चेंज किस में से हो रहा है, +2 में से +4 में जा रहा है, तो चेंज 2 का हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 4। अब आप ये लगा दोगे कि आप अभी तक जो भी हम करते आ रहे हैं, सिंपली इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7, जितने इसके इक्विवेलेंस होंगे उतना ही इसके इक्विवेलेंस यूज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्विवेलेंस ऑफ SnC2O4। ठीक है, इसके मुझे मोल्स नहीं पता बट एन फैक्टर पता है, तो एन फैक्टर इनटू मोल्स विल बी इक्वल टू, इसका एन फैक्टर कितना है 4 और मोल्स कितना है 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। वेरी सिंपल, गॉट इट। समझ में आया सबको? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। हाउ मेनी moles of acidified KMnO4 is required to oxidize a sample containing 10 moles of Ki, 20 moles of H2O2, 3040 grams of FeSO4 and 30 moles of FeC2O4 dot 3SnC2O4। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 इज रिक्वायर्ड, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज अ सैंपल। सो एक सैंपल है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और उसमें क्या क्या है, 10 मोल्स ऑफ Ki, मतलब KMnO4 Ki को भी ऑक्सीडाइज करेगा, अभी हमने ऊपर देखा है। H2O2 को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है बिकॉज KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। FeSO4 को भी ऑक्सीडाइज करेगा ही, एंड ऑक्सलेट को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो कितना मुझे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए कि ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि जो KMnO4 है हमारे पास, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो रिड्यूस किस किस को कर रहा है, Ki को, H2O2 को, FeSO4 को, एंड यहाँ पे 2 लगा लो क्वेश्चन में, 2 कर लो यहाँ पे, 2 FeC2O4 डॉट 3 SnC2O4। इतने सारे चीजों को ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये सब के सब किसकी तरह काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब मुझे इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना होगा, तो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरफ, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक तरफ। So what I am going to write down here, equivalence of KMnO4 will be equal to equivalence of Ki plus, because ये सब reducing agents है, equivalence of H2O2 plus equivalence of FeSO4 plus equivalence of 2FeC2O4 dot 3SnC2O4. Okay,
इसका n फैक्टर 5 होता है KMnO4 का, आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको हम कैसा कंसिडर करते हैं, फिक्स कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए n फैक्टर कितना होता है 5, इसके लिए लिख दो 5। पूछा है कितने मोल्स चाहिए, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KI। KI के लिए अभी आपको मैंने ऊपर बताया n फैक्टर कितना होता है 1, बिकॉज -1 से 0 में चेंज होता है, तो चेंज कितने का आया 1 का। सो n फैक्टर इज 1। मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 मोल्स, प्लस इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 में आपको पता है इसका तो फिक्स होता है n फैक्टर H2O2 का, दैट इज योर 2। और 20 मोल्स गिवन है आपको किसके, H2O2 के, प्लस इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4। FeSO4 को आपको पता है n फैक्टर 1 ही होता है, बिकॉज FeSO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, मैक्सिमम चेंज किसमें होता है +3 में, तो n फैक्टर हो गया 1। बट इसका आपको ग्राम्स गिवन है ना, आपको क्या गिवन है, इसमें ग्राम्स गिवन है। तो इसे ग्राम्स को आप क्या करो, मोल्स में कन्वर्ट कर दो। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। FeSO4 का मोलर मास कितना होता है 152, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, प्लस इक्विवेलेंस ऑफ दिस वन। तो पहले हमें इसका क्या निकालना है, एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। फॉर एन फैक्टर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, टोटल कार्बन यहाँ पे कितना हुआ, 2 2 4, बिकॉज यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 3 2 6 है, तो 6 + 4 कितना हुआ 10 नंबर ऑफ कार्बन। प्लस आयरन में अगर कोई भी चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो हम उसकी बात करेंगे। तो Fe जो है +2 से +3 में चेंज होगा, तो चेंज कितने का आया 1, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। प्लस Sn में चेंज कितना आता है +2 से +4 में, दैट इज चेंज आया 2 का। आयरन एटम्स कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 3, तो इसका एन फैक्टर कितना आया 10 + 1 सेकेंड। This will be your 10 plus 3 2 6 plus 2 8, that is your 18. So n factor for this is your 18 into 30. Is this clear to everyone or not? Question exactly same है जिससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स इसमें काफी इंक्रीज कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। So this is your 5x is equal to 10 plus 40 plus 3040 divided by 152 is 20 plus 18 into 30। x को यहीं पे रखो, 5 को इधर लेके आ जाओ, तो सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 10/5, 40/5, 20/5 plus 18 into 30/5। Now let's solve it for x। तो हो जाएगा 5 plus 8 plus 4 plus 108। So answer will be 122। तो कितने मोल्स लगेंगे मुझे KMnO4 के 122। Is it clear to everyone or not? Yes, ma'am. Precisely, KMnO4 always act as an oxidizing agent, पता करने का जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से क्वेश्चन में भी तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। How many moles of acidified KMnO4 is required to oxidize a sample containing? तो ऑक्सीडाइज तो यही कर रहा है ना KMnO4, बाकी सब तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। हाँ मैम, उनमें से जो वो कंटेन करा वो, अच्छा हाँ ओके मैम। है ना, वो तो बाकी सब तो पूरा सैंपल ही वही है, सैंपल में ये सब चीजें हैं, मिक्सचर ऑफ सैंपल प्रेजेंट है ऑल टुगेदर। ओके मैम। और ऊपर मैंने इसीलिए अलग से लिखवा भी दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे और किस किस को रिड्यूस करेंगे। तो वो हमने अभी बात करी ना, फेरस को फेरिक में, स्टैनस को स्टैनिक में, तो वो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, KMnO4 और K2Cr2O7। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो, पूछो। 10/5 2 होगा मैम। क्या बेटा? मैम वहाँ 10/5 आपने 5 लिखा है, 2 होगा। सॉरी 2। So how many ml of decimolar
K2Cr2O7, कहीं भी K2Cr2O7 दिख जाए, KMnO4 दिख जाए, आंख बंद करके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, खत्म बात. Are required to react completely with 50 ml of semi-molar solution of मोहर सॉल्ट. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा ना, मोहर सॉल्ट की आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट मैंने आपको मोहर सॉल्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया, यस और नो. तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैम भी हम कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, वो नहीं. मोहर सॉल्ट में आपको ऑलरेडी बता चुके. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ डेसीमोलर K2Cr2O7 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 50 ml ऑफ सेमी मोलर मोहर सॉल्ट. तो ये K2Cr2O7 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मोहर सॉल्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. सिंपली क्या करना है, इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 will be equal to equivalence of मोहर सॉल्ट. यस और नो, क्लियर है ना. अब इक्विवेलेंस ऑफ मोहर सॉल्ट होता क्या है आपको मैंने बता दिया था, नोट्स चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा. मोहर सॉल्ट इज योर NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2. और आपको बताया भी था कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्सटेंस है जो अपना जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, दैट इज योर FeSO4. और FeSO4 में से Fe ऑक्सीडाइज होगा किसमें, +2 से +3 में. सिर्फ यही चेंज है इसका, तो एन फैक्टर हो गया इसका 1. बस अब फॉर्मूला लगा दो. मिलीलीटर वाला पूछा है आपको, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे. आपको मैंने बोला है कि इक्विवेलेंस के 2 ही फॉर्मूलेज हैं, एक तो एन फैक्टर इंटू मोल्स और दूसरा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम. तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया तो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाओ. नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना. तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, इसमें डेसीमोलर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मोलैरिटी इज 1/10. एन फैक्टर K2Cr2 का होता है 6, आपको ऑलरेडी पता है. दिस इज योर नॉर्मेलिटी. मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से, जो आपको निकालना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मोहर सॉल्ट. सेमी मोलर गिवन है, मतलब मोलारिटी कितना हो गया 1/2, सेमी मोलर इज 1/2. एन फैक्टर होता है 1. दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है 50. अब यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लो, कितना वॉल्यूम चाहिए, दैट इज योर 2 3 are 6, 2 5 are 10. इधर चले जाएगा तो 50 into 5 divided by 2 into 3. That means 250/6 milliliter. Got it or not? Let me know समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, अदरवाइज पता नहीं चलता मेरे को. ऑनलाइन क्लास है, टॉपिक भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है. चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ. 25 ml of acidified KMnO4 reacts completely with 3.4 milligrams of H2O2. Determine normality and molarity of KMnO4 solution. Write down this question for homework.
हाँ 3.4 है, संपदा इट्स 3.4। 3.4 milligrams. So try to solve this question homework में. Okay, written. Yes, ma'am. Okay, fine. The next topic which we are starting is your titration. Now, titration is basically, it is a method or it is an experimental process to determine the concentration of a substance uh, which is unknown. Like you know what the substance is, but its concentration is unknown. Okay. Now, if अगर आप अपने labs वगैरह में जाते हो तो कुछ racks में बहुत सारे solutions रखे होते हैं, है ना? ऑब्जर्व किया होगा, रैक्स में काफी सारे Yes, सॉल्यूशन ma'am. रखे होते हैं ग्लास बॉटल्स में। तो उनके ऊपर एक छोटी सी स्लिप लगी होती है और उस स्लिप में कंपाउंड का जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका नाम लिखा होता है। और यूजुअली अगर आप ध्यान से कभी अभी जब स्कूल खोलेंगे तो जाके लैब में देखना कि यू विल फाइंड कि उसमें नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी मेंशन्ड होगा, कि उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में है तो एम लिखा होगा और नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में है तो एन लिखा होगा। ओके, तो ये सारे सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी उस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके आपके रैक्स में रखा हुआ है और उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नोन है। मान लो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता है, वो आप टाइट्रेशन मेथड से फाइंड आउट करते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन इज योर it is the process of determination of unknown concentration with the help of solution of known concentration is known as titration. एक अननोन सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करना है, एक का आपको ऑलरेडी पता है और उसी का यूज करके हम उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब एपरेटस एग्जैक्टली कैसा होता है कि लेट्स से दिस इज योर, ओके डोंट गो बाय माय ड्राइंग, ये स्टैंड है, थोड़ा डायग्राम गंदा भी होगा तो प्लीज मैनेज। ओके, नाउ यहाँ पे हम एक काफी ऐसे लेंथ वाला एक ट्यूब अटैच करते हैं जिसको ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, इस ब्यूरेट में यहाँ पे एक लगा होता है नॉब, यहाँ पे एक यूजुअली कॉनिकल फ्लास्क होगा। आप जब लैब में ये टाइट्रेशन करोगे आप लोग वैसे तो जैसे स्कूल खुलेंगे यहाँ पे आपके पास एक सिंपल कॉनिकल फ्लास्क प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आप वो सब्सटेंस फिल करोगे। यहाँ पे ऐसे मार्किंग भी प्रेजेंट होती है, ऑल दीज विल बी मार्किंग, और इसके अंदर आपके पास वो सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका सोल्यूशन आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आपको जिसका पता है उसको बोलते हैं हम टाइट्रेंट, जिसका नोन होता है कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब ही क्या है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नोन है। यहाँ पे आपके पास वो चीज प्रेजेंट होगी जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, दिस इज नोन एज टाइट्रेट, मतलब जिसका टाइट्रेशन आपको करना है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करना है। तो यहाँ पे लिख लो टू बी डिटरमाइंड। ओके, दिस apparatus इज क्लियर टू यू? जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं बिफोर मूविंग अहेड। फर्स्ट इज योर
standard solution. That what is a standard solution? So solution whose concentration is known as standard solution, also called as titrant. ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज योर प्राइमरी titrant या फिर आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल सकते हो, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी titrant. व्हाट आर योर प्राइमरी titrants? इसमें ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नोन रहेगा और परफेक्ट रहेगा. सेकेंडरी में क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटी होने की वजह से उसका जो स्टैंडर्ड आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया था, उसका कॉन्सेंट्रेशन में कुछ इम्प्योरिटी होने की वजह से वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको उसे दोबारा से स्टैंडर्ड करना पड़ेगा. यूजुअली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो प्राइमरी टाइट्रेंट पे आएंगे, मतलब ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे. जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन हियर. Reagents which can be accurately weighed and their solution need not to be standardized before use. सेकेंडरी टाइट्रेंट यूजुअली हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, तो अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है. सो एग्जाम्पल में आपको जो क्वेश्चन में यूजुअली दिया जा सकता है वो ऑक्सैलिक एसिड होगा, K2Cr2O7 हो गया, या फिर AgNO3 हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, मोहर सॉल्ट हो सकता है, KI हो सकता है. तो ऑल दीज आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व होगा. सेकेंडरी टाइट्रेंट में आपके पास होगा which cannot be accurately weighed and need to be standardized before use. ठीक है, यूज करने से पहले उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एंड दिस इज ड्यू टू लाइक इम्प्योरिटी. कॉमनली जो आपको सेकेंडरी टाइट्रेंट में देखने को मिल सकता है NaOH, KOH, HCl, I2, KMnO4. ओके, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी टाइट्रेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट. बेसिकली लिख लो. Done? Okay. Next, let's talk about titrate, मतलब जिसका आपको titration करना है. That is known as titrate. So solution consisting of substance to be titrated is known as titrate, and it is taken in a beaker.
इसको हम बीकर में लेते हैं। ओके, अब एक तरफ आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, एक ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। तो जब आप उसको आपस में मिक्स कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो जितना आपके पास बीकर में अननोन सब्सटेंस है, ओके, उसी के हिसाब से आपके पास जो भी ब्यूरेट में जो बड़ा सा आपके पास टेस्ट ट्यूब जैसा है उतना ही सब्सटेंस कंज्यूम होगा। तो आफ्टर सम पॉइंट देयर विल बी एन इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, जहाँ पे जो भी आपके पास अननोन था वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा उसमें, तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। सो नेक्स्ट इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। So point at which equivalence of titrant becomes equal to equivalence of titrate। तो वहां पे रिएक्शन जो है आपके पास स्टॉप हो जाएगी और कुछ नया नहीं है ये, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बस वही है। तो आप क्या लिखोगे, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ईपी लिख रही हूँ मैं, समीशन ऑफ टाइट्रेंट। समीशन ऑफ टाइट्रेंट लिख रही हूँ मैं कि अगर इन केस दो से ज्यादा टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं तो, एक से ज्यादा बेसिकली, तो समीशन ऑफ जितने भी टाइट्रेंट होंगे, ओके, उनके इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट, जो कि अभी हम ऊपर कर रहे थे। तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। इसके लिए आप वही दो फॉर्मूलेज लगाओगे इक्विवेलेंस के लिए, एक तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और दूसरा N फैक्टर इनटू मोल्स, दोनों के इक्वेट करोगे, यहाँ पे भी N फैक्टर इनटू मोल्स। और इसी तरीके से हम पूरा टाइट्रेशन जो है यही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देयर इज नो न्यू फॉर्मूला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है इसका। एक और टर्म होता है यहाँ पे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है कि मान लो टाइट्रेट और टाइट्रेंट दोनों ही कलरलेस है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कब खत्म हो गई? मैं तो ऐड करती रहूंगी, मुझे तो पता नहीं चलेगा कि कब रिएक्शन स्टॉप हो गया कब नहीं हुआ। तो ये आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंड पॉइंट पे कलर चेंज करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर वी गेट टू नो दैट कि हाँ अभी रिएक्शन जो है हमारे पास कंप्लीटली स्टॉप हो गया है। सो इंडिकेटर इज योर, it is an auxiliary substance which gives the idea about completion of reaction by changing its color। ठीक है, कलर चेंज के ऑक्सिलरी सब्सटेंस मतलब हेल्पफुल सब्सटेंस, दिस टर्म मीन्स हेल्पफुल। तो एक ऐसा हेल्पफुल सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करके हमको ये बताएगा कि ठीक है अभी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। टाइट्रेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आपको एक टाइट्रेशन समझ में आ गया है तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज योर एसिड बेस टाइट्रेशन। Okay, second is your redox titration। redox titration में वही oxidation reduction होने वाला है। Then there is back titration। It is very easy, कुछ नया फंडा नहीं है, एक बार एक जो भी टाइट्रेशन आ गया नेक्स्ट इज वेरी इजी। Then you have conductometric titration। Then you have complexometric titration। Then pH titration।
and last is your iodometric and iodimetric टाइट्रेशन। ठीक है, इतने सारे टाइट्रेशन देके घबराना नहीं है, आपको बस ये 3 बेसिकली पढ़ना है। बैक टाइट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन ओनली, बाकी हमको ये सब नहीं पढ़नी। अंडरस्टूड? राइट डाउन दिस। टॉपिक एक ही है प्रशिष्ट, इट्स नॉट दैट मच, सब एक ही जैसे रिएक्शन है, बस हम सब्सटेंस चेंज करते रहेंगे, इसलिए नाम अलग अलग हो गया। डन राइटिंग? चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। Fourth one is conductometric titration. CONDUCTOMETRIC. Conductometric titration. Okay. We are doing here acid base titration. अभी acid base titration में क्या होगा? Let's draw the setup. Setup हमारा सेम ही है ना? यहाँ पे ये स्टैंड है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ स्टैंड को। यहाँ से आपने कनेक्ट किया ब्यूरेट को, यहाँ पे ब्यूरेट का नॉब है और इधर आपके पास फ्लास्क है। एसिड बेस है तो हम क्या यूज करेंगे, एक एसिड और एक बेस, बस यही लॉजिक है यहाँ पे। इस ब्यूरेट में, दिस इज नोन एज योर BURETTE, ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में आप डालोगे नोन सब्सटेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस डालेंगे। तो मान लेते हैं मैं यूज कर रही हूँ 0.1 नॉर्मल NaOH, ठीक है, इतना नॉर्मेलिटी का मैंने NaOH इसमें डाला। इस बीकर में मैंने एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन का एसिड लिया हुआ है एंड दैट इज योर HCl। उसका मैं मिलीलीटर तो मैं देख सकती हूँ, मुझे कितना मैं वॉल्यूम कितना ले रही हूँ, दैट आई कैन सी। तो आई एम टेकिंग 10 ml ऑफ HCl, ठीक है। दिस इज योर अननोन, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन। अब इक्विवेलेंस पॉइंट हमको पता चल जाए कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो उसके लिए हम इसमें एक इंडिकेटर ऐड करते हैं। एन इंडिकेटर हियर इज phenolphthalein इंडिकेटर, ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे phenolphthalein इंडिकेटर। नाउ जैसे जैसे आप बेस को, इस नॉब को ओपन करोगे, इसके जो ड्रॉप्स है वो एसिड में जाने लगेंगे, ठीक है। अब एसिड में जाएंगे तो सिंपल कौन सा रिएक्शन होने वाला है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। फिनोफ्थलीन का खास बात क्या है कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो NaOH जो है फ्रॉम ब्यूरेट से हम पुट कर रहे हैं एसिड में, तो हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन क्या होने वाली है, NaOH प्लस HCl is going to give you NaCl plus H2O, ठीक है। अभी हम इसको तब तक ऐड करेंगे कि सोल्यूशन जो है आपके पास कैसा रहे, कलरलेस। तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जब तक सॉल्ट फॉर्म होगा तब तक आपके पास सोल्यूशन क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, बिकॉज NaOH जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। द मोमेंट आपके पास सारा का सारा HCl कंज्यूम हो गया, यहाँ पे ये हम एक्स्ट्रा ही रखते हैं,
जब आपके पास सारा का सारा HCl कंज्यूम हो गया, तो अगर आप एक ड्रॉप भी NaOH डालोगे तो वो एक्सेस में हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करता है, एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करने की वजह से इट विल आयोनाइज phenolphthalein indicator। अब वो phenolphthalein इंडिकेटर को आयोनाइज कर देगा। इंडिकेटर को हम INH इसके फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। इसको जब हम आयोनाइज करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, IN माइनस प्लस HP, सॉरी IN माइनस और H प्लस। तो जो भी आपके पास NaOH आपने ऐड किया था वो इसके साथ Na प्लस और OH माइनस इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और फॉर्म कर लेगा IN माइनस Na प्लस कॉम्प्लेक्स। अपोजिट साइन है, इसका माइनस इसके प्लस से जाके ज्वाइन हो गया, इसका प्लस इसके माइनस से जाके ज्वाइन हो गया, और साथ में H2O इसकी वजह से, H प्लस और OH माइनस की वजह से। तो ये जो आपके पास इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है पिंक कलर। यू विल गेट अ पिंक कलर हियर। जैसे ही आपको लाइट पिंक कलर मिल गया, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन वहां पे हो गया है आपकी स्टॉप। अब आप क्या करोगे, ब्यूरेट से अपना वॉल्यूम देखोगे कि कितना वॉल्यूम यहाँ से कंज्यूम हुआ। यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रॉम हियर। तो यू विल हैव, लेट्स से V1 कुछ वॉल्यूम हुआ, और N1 आपको ऑलरेडी पता है, इसका तो नॉन कॉन्सेंट्रेशन है। इसका V2 आपको पता था, और N2 आपको फाइंड आउट करना है कितना था। तो at equivalence point what you are going to do is, और इस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट भी बोल देते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट को। आपको पता होगा इक्विवेलेंस ऑफ NaOH यहाँ पे किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंस ऑफ HCl। सो दैट मीन्स हम वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 मुझे पता है NaOH का इज योर 0.1 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम। अगर लेट्स से कि 8 ml कंज्यूम हुआ है, मान लेते हैं 8 ml, N2 हमें निकालना है, और V2 हमने स्टार्टिंग में 10 ml लिया था। तो जब मुझे N2 निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 into 8 divided by 10, that will be your 0.08 normal। बात समझ में आया टाइट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट? लेट मी नो। सो एट एंड पॉइंट इस सॉल्यूशन का हल्का हल्का सा कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। बस यही टाइट्रेशन है। अब हर जगह जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए, वहां पे हम ब्यूरेट में और कॉनिकल फ्लास्क में सब्सटेंस चेंज कर देंगे, बस रेस्ट विल बी सेम। बाकी में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। रिएक्शन ऐसी ही होगी, इक्विवेलेंस को हमको ऐसे ही इक्वेट करना है। कोई ना कोई हम इंडिकेटर भी लेंगे। एसिड और बेस के लिए हमने यहाँ पे फिनोक्सिलीन इंडिकेटर लिया हुआ है, ठीक है। राइट डाउन दिस। ब्यूरेट इस कंटेनर को बोलते हैं, दिस होल कंटेनर इज नोन एज ब्यूरेट। ये आपका कॉनिकल, ये स्टैंड हो गया, इसको मार्क कर लो चाहे तो। दिस इज योर स्टैंड, दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क। ओके, ये आपके पास ब्यूरेट है, और ब्यूरेट के अंदर NaOH फिल किया हुआ है।
Done writing? Okay, let me just show you one video if I can show you. टाइट्रेशन के ऊपर अगर कोई वीडियो, जस्ट एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से टाइट्रेशन लैब में करते हैं. एनीवेज आप खुद भी करोगे जस्ट फॉर नाउ. We'll be discussing the proper titration technique using the complete single burette assembly, a known concentration called the titrant. Mark the endpoint of a titration, an indicator is added to the analyzer. Okay, volume is okay everyone, let me know. Volume से आ रहा है क्या? Let me know if volume is okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll connect my speaker अगर कम लग रहा है तो ठीक है, because this is the maximum volume for my like computer. मेरे कंप्यूटर का आवाज थोड़ा सा कम है. मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करती हूँ, just give me 1 minute. Just okay, 1 second. Okay, I'm just wasting time है ना, तो just 1 minute. Okay, ऐसे ही देख लो for the time being. Okay, next time I'll already connect my Bluetooth. Wait, it is taking a lot of time. Okay, I'll explain the video, whatever he is doing. Okay, I'll explain you in between. Let's review some of the equipment that's needed for a titration. Carolina's complete burette assembly contains the basic equipment to get you started, including a burette, ring stand, and a burette clamp. A burette is a long, narrow, graduated tube used to add titrant. It has a stopcock to regulate the flow of liquid. Notice that the markings on the burette go from lowest at the top to highest at the bottom. The ring stand and burette clamp are used to mount and secure your burette. Other materials you will also need include a small funnel to help you fill the burette, a 125 milliliter Erlenmeyer flask, which works best for titration,
The shape of the flask allows for more vigorous swirling than a beaker or other glassware and minimizes spill hazards. A volumetric pipette and pipette bulb to transfer a known volume of analyte to the flask. A wash bottle filled with deionized water, a beaker or flask of titrant and of analyte, indicators selected for your reaction, a reading card to help read the meniscus, and a sheet of white paper to help visualize the endpoint. To prepare your burette for the titration, it is good laboratory practice. Okay, so he is just telling you what to do and everything. ये जो लंबा सा आपको फ्लास्क दिख रहा है, that is your burette. ठीक है, उसको क्लीन कर रहा है, तो क्लीनिंग हमको देखने का जरूरत नहीं है, और स्टैंड में इस तरीके से अटैच कर दिया है, जिसमें मार्किंग्स है हमारे पास, एंड इस मार्किंग्स में आप कितना वॉल्यूम ले रहे हो दैट यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, इसने फिक्स कर दिया है एंड एवरीथिंग. एंड ऊपर से ये कॉनिकल फ्लास्क लेके हम Filling exactly to the zero mark is not necessary. NaOH You ऐड need कर रहे हैं. sufficient ओके, titrant to complete the reaction. Check the column for air bubbles and gently tap to free them from the side walls. Remove the funnel. Place the Erlenmeyer flask under the tip and open the stopcock to allow a few milliliters of titrant to flow through, releasing any trapped air. ठीक है. व्हाट ही इज डूइंग कि थोड़ा सा जो भी यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड फिल करने की वजह से इसके जो यहाँ पे कुछ एयर गैप्स आ जाते हैं, तो वो एयर गैप्स को हटाने के लिए व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज थोड़े से ऐसे ही रिलीज कर दिया, ताकि अगर कुछ इन बिटवीन एयर गैप्स थे तो वो आपके रिमूव हो जाए. तो ये हम ब्यूरेट को प्रिपेयर कर The रहे हैं tip of the ऑलटुगेदर, burette with water. सब वॉशिंग Empty the एंड ऑल. liquid into a waste container and thoroughly rinse the flask. It is not necessary to dry the flask. Record your starting volume. It is important to accurately read the volume on the burette. First, note that the liquid forms a concave. सो कितना वॉल्यूम हमने लिया हुआ है वो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे मार्किंग्स में सब ml एंड एवरीथिंग इज रिटन डाउन, तो वी आर जस्ट मार्किंग फ्रॉम हियर, गेटिंग द मार्किंग. स्टार्टिंग का वॉल्यूम कितना है, फिर टाइट्रेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, और फिर फाइंड आउट करेंगे कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया है. Meniscus because the water pulls itself up the side walls of the glass. ये सब Configure. ऐसे ही है. This burette indicates volume to the nearest 0.1 milliliters. With any graduated glassware, record the volume to one additional decimal place beyond the smallest graduation. In this case, record the volume to the flask. Add a few drops Okay, of ink, so estimating the final pledge. Use the volumetric pipette to what he is doing is इसमें से जो भी हम एसिड ले रहे हैं, जैसे आई थिंक ही इज टेकिंग H2SO4 हियर, यहाँ पे H2SO4 ले रहा है, ये हमने HCl लिया हुआ था अभी जो पड़ा है उसमें. तो दिस इज नोन एज पिपेट. पिपेट एक ऐसी ही स्मॉल सी होती है जिसमें हम यहाँ से लिक्विड को जो है पुल करते हैं ऊपर, और उसके बाद इसको ट्रांसफर करते हैं इसमें. इसमें हमको प्रॉपर वॉल्यूम मिलता है. लाइक पिपेट से जब हम वॉल्यूम करते हैं तो कुछ डिफरेंस नहीं आता एग्जैक्ट. अगर हम 10 ml ले रहे हैं तो 10 ml ही होता है. पिपेट डिफरेंट ml की होती है, 10 ml 20 ml, और यहाँ पे एक मार्किंग होती है. ठीक है, तो आपको यहाँ तक आप अपने माउथ के हेल्प से आप क्या करते हो, यहाँ पे जो भी लिक्विड है उसको पुल करते हो ऊपर की तरफ. तो यहाँ तक जैसे ही आप पुल करोगे, जैसे स्ट्रॉ यूज करते हैं, द सेम वे वी यूज पिपेट, और फिर उसके टिप पे हम अपना थंब रख देते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड वापस से नीचे ना गिरे, और यहाँ से उसको ट्रांसफर कर देंगे इस प्रॉपर कॉनिकल फ्लास्क में, जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ओके. transfer the analyte to the flask. Add a few drops of indicator to the flask and swirl. Place the flask under the tip of the burette. Record this volume. Placing a piece of white paper under the Erlenmeyer flask may make it easier to detect the color change. Operating the burette requires two hands. One hand turns the stopcock, while the other hand swirls the flask. Practice turning the stopcock a few times to familiarize yourself with how quickly the flow starts and stops. It is common laboratory practice that the first titration is an estimate. Open up the stopcock and allow the titrant to enter the flask quickly. Continuously swirl the flask. As the volume of titrant in the flask increases, the color of the indicator appears, then disappears as you swirl. So, अभी आपको कलर बहुत डार्क दिख रहा होगा, तो एक्चुअली जब आप उसको कंटिन्यूसली स्वर्ल करोगे तो रिएक्शन होती रहेगी, जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी पिंक कलर आपके पास डिसअपीयर होते जाएगा. When the analyte becomes a colored solution, close the stopcock. अभी ये इससे ज्यादा आप और नहीं ऐड करना चाहिए. इसने एक्चुअली थोड़ा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ किया है, काफी डार्क कलर हो गया है, इतना डार्क कलर नहीं आना चाहिए, इसने ज्यादा ऐड कर दिया है NaOH.
तो हमको इतना NaOH ऐड नहीं करना है, एंड पॉइंट तक आते आते हमको एक एक ड्रॉप ही डाल के देखना है और swirl करना है। जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करते ही लाइट पिंक कलर आ गया, आपको वहीं पे अपना रिएक्शन क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, ही हैज डन लिटिल बिट, लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा किया हुआ है इसने। Record the final volume of the burette. Subtract the initial volume from this final volume to get the estimated volume of titrant needed for this titration, and before a slower addition is required. As the estimate titration shows, a dark-colored solution indicates an excess of titrant has been added. The desired endpoint is a pale, faintly colored analyte. देखो ये जो है आपको लाइट पिंक सा दिख रहा होगा, इतना हमको लाना होता है। यूजली लैब में हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, हमको इतना नहीं करना होता। अगर इतना बहुत ही पेल सा लाइट सा पिंकिश कलर दिख रहा है आपको, तो ये आपके पास एग्जैक्टली एंड पॉइंट है। तो बहुत धीरे धीरे करना होता है, अदरवाइज आप मैक्स हो सकता है मैक्स ज्यादा पिंक कलर ले आओ, एंड दैट इज नॉट ओके फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट द रफ आइडिया ऑफ टाइट्रेशन की कैसे करते हैं, लेबोरेटरी में कैसे होता है। ओके, और इसी का जो है थ्योरेटिकल व्यू मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, गॉट इट एवरीवन? ओके, अब इसी केस में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास केसेस हो सकते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन ऑन टाइट्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट volume of 0.2 molar CaOH whole twice solution required to neutralize a sample containing 0.365 gram of HCl and 0.245 gram of H2SO4। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर CaOH वर्ल्ड वाइज। ये आपके पास बेस है, इसको आप ब्यूरेट में ले रहे हो। रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज अ सैंपल कंटेनिंग, कोनिकल फ्लास्क में आपके पास HCl भी है और ये भी है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता ही चुकी हूँ, जितने एसिड बेस रिएक्शन है तो सारे एसिड को एक तरफ कर दो, सारे बेस को एक तरफ कर दो, बस। सो इक्विवेलेंस ऑफ CaOH whole twice will be equal to equivalence of HCl plus equivalence of H2SO4। क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में अगर सॉल्यूशन में दो मिक्सचर आपको प्रेजेंट है, दो अलग अलग एसिड है, HCl और H2SO4 है, तो दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। सो यू विल हैव हियर CaOH whole twice का आपको मोलैरिटी गिवन है। आप देखो इक्विवेलेंस में नॉर्मेलिटी लेते हैं, तो पहले इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करो। तो 0.2 को इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा CaOH whole twice का 2, ये आपके पास आ गया नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम हमें इसका निकालना है। इक्विवेलेंस ऑफ HCl कितना होगा, ग्राम्स आपको गिवन है 0.365 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होगा 36.5 इंटू एन फैक्टर, HCl का एन फैक्टर कितना होता है 1 प्लस। अच्छा, फॉर दैट मैटर आप ऐसा भी कर सकते हो, एनीवेज हमको इक्विवेलेंस इक्वेट करने, तो यहाँ पे हम N1V1 और यहाँ पे हम एन फैक्टर इंटू मोल्स भी ले सकते हैं, बिकॉज दोनों ही आपको क्या दे रहे हैं, इक्विवेलेंस ही दे रहे हैं। तो इक्वेट तो आप उनको भी कर सकते हो, तो बस इसको भी ऐड कर दो। इसका मास कितना गिवन है 0.245 डिवाइडेड बाई H2SO4 का मोलर मास होता है 98, एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2। बस इसको सॉल्व कर दो V के लिए, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड दिस और नॉट? क्लियर है सबको? ओके, सेकेंड टाइप ऑफ टाइट्रेशन करते हैं, दैट इज योर रेडॉक्स टाइट्रेशन। Till then write down this.
सॉल्व करके आंसर निकालना कितना वॉल्यूम आ रहा है. ओके, आई हैव लाइक टोल्ड यू मेथड हाउ टू डू इट. अब रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम एसिड और बेस ले रहे थे, अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस होगा. सो इन दिस राइट डाउन टाइट्रेशन in which oxidizing agent and reducing agent reacts with each other is known as redox titration. तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या करेंगे, अब अभी हमने ऐसा क्वेश्चन भी लगाया था, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और सारे रिड्यूसिंग एजेंट को एक तरफ कर देंगे. सो एट इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, जहाँ पे रिएक्शन आपकी फिनिश हो गई है, summation of equivalence of oxidizing agents will be equal to summation of equivalence of reducing agent. ओके, तो इसका जो बहुत ही कॉमन आपको टाइट्रेशन यूजुअली ऑब्जर्व होगा वो होगा परमैंगनेट टाइट्रेशन. परमैंगनेट टाइट्रेशन में हम क्या यूज करेंगे, KMnO4. So in permanganate titration MnO4O minus, permanganate is MnO4, मतलब जो हम यूज करने वाले KMnO4 यूज करने वाले बेसिकली. So in permanganate titration MnO4 minus is used as an oxidizing agent. और हमेशा एसिडिक मीडियम ही रहता है, लाइक जनरली इन एसिडिक मीडियम. एंड जो भी एसिड यूज करते हैं हम इज डाइल्यूट H2SO4. ठीक है, तो यूजुअली जो एसिडिफाइड KMnO4 लेंगे उसमें जो एसिड यूज करते हैं दैट इज योर H2SO4 मोस्ट ऑफ द टाइम पे. अब इसका सिस्टम क्या होता है, ये हमारे पास स्टैंड है, ये ब्यूरेट आ गया, यहाँ पे इसका नॉब होगा. अब थोड़ा सा आप विजुलाइज कर पा रहे होगे तो ज्यादा इजी होगा. यहाँ पे हमने ये कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, ये हमारे पास स्टैंड है. ओके, यहाँ पे हम KMnO4 जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड लेते हैं. दिस कंटेन्स योर KMnO4. ओके, मान लेते हैं 0.02 मोलर लिया हुआ है. दिस इज आर परमैंगनेट आयन. ओके, यहाँ पे हम कोई एक ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है. मान लेते हैं हम FeSO4 सोल्यूशन ले रहे हैं. तो FeSO4 सोल्यूशन में Fe किसमें होगा, Fe+2 में. इसी का कॉन्सेंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली. तो Fe+2 को कभी भी अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है आपके पास दैट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. अभी रिएक्शंस फॉर दैट मैटर यू ऑलरेडी नो. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दी रिएक्शंस. रिएक्शंस क्या होता है, MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, Mn+2 में. आपको ऑलरेडी पता है ये चीज. ठीक है, और क्योंकि आप फेरस सल्फेट ले रहे हो और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरा किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट. और ये जो है इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, Fe+2 को Fe+3 में. यू ऑलरेडी नो दिस. इसके बाद आप बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग कर सकते हो. ओके, अब जब MnO4 रिएक्शन होने के, अच्छा टोटल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास हो रहा है MnO4 माइनस प्लस Fe+2 gives you Mn+2 प्लस Fe+3. ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हो. इसका हम ऑलरेडी एग्जाम में कर चुके हैं. तो यहाँ पे मतलब
एग्जाम बोल रही हूँ, नोट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 8 प्लस आयंस हो जाएगा, यहाँ पे 5 18 प्लस 3 और 4 H2O। ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। अभी MnO4 माइनस की वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक। ओके, और Mn में जब वो कन्वर्ट होगा तो ये कैसा होगा, कलरलेस। तो यहाँ पे मोस्टली हमको कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पिंक कलर है रिएक्शन होने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। तो ये आपके पास एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर देगा। आप रिएक्शन करते रहो, रिएक्शन करते रहो, द मोमेंट आपको पिंक कलर दिख गया इसमें, इसका मतलब है आपने एक्सेस ऑफ MnO4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दैट इज योर एंड पॉइंट। सो एट एंड पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 extra drop and the solution becomes pink। ठीक है, तो आपको बस एक ही एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करना है जहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाए, पिंक हो जाए, एंड दैट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दी एंड पॉइंट की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। देयर इज नो मोर फेरस आयन रिमेनिंग टू गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि MnO4 कर क्या रहा है, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बाकी जो चीजें हैं आप सेम ही करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी को पहले नॉर्मेलिटी में चेंज करो, ओके, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो। सो दैट इज द सेम थिंग, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंट डिफरेंट नाम का टाइट्रेशन है, जस्ट टू टेल यू कि सब्सटेंसेस जो है वो आप डिफरेंट यूज कर रहे हो। गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक चीज ये बोली कि जब हम पर मैग्नेट का टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिडिफाइड मीडियम में, तो आई एम ऑलवेज यूजिंग डाइल्यूट H2SO4। हम दूसरे एसिड्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मान लो मैं HCl यूज कर लूँ, ओके, या फिर हम HNO3 यूज कर ले, ये सब भी तो आपके पास एसिड्स ही है, वाई ओनली H2SO4? तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वाई ओनली H2SO4 इज यूज्ड for acidic medium। and not HCl HNO3। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आई थिंक नीट में आया था। तो इसका मेन रीजन क्या है कि अगर आप HCl ले लो, ओके, if I am taking HCl, मान लो हमने H2SO4 की जगह HCl ले लिया, तो HCl जो है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, तो यहाँ पे ये -1 से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 0 में। सो KMnO4 will oxidize HCl। तो कुछ KMnO4 का जो अमाउंट है वो तो एसिडिफाइड मीडियम को ही ऑक्सीडाइज करने में चला गया, तो जब मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, बिकॉज उसमें जो सॉल्यूशन जो अननोन है उसका तो आपको वो तो कर ही रहा है उसको ऑक्सीडाइज, एज वेल एज जो आपने एसिडिफाइड मीडियम लिया हुआ उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो KMnO4 का वॉल्यूम जब आप वहां पे फाइंड आउट करोगे, दैट विल नॉट बी करेक्ट फॉर दी एंड पॉइंट। ओके, सो हमको एक ऐसा मीडियम यहाँ पे लेना है, एसिडिफाइड में ऐसा एसिड लेना है जो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देन इट शुड ऑक्सीडाइज ओनली टाइट्रेट, सिर्फ टाइट्रेट को ही ऑक्सीडाइज करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द वन रीजन अगर आप ले रहे हो HCl। अब अगर हम HNO3 ले रहे हैं, अब HNO3 खुद में ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो HNO3 is itself a good oxidizing agent. So some of the titrate will be oxidized by HNO3। तो KMnO4 भी ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर आपने HNO3 एसिड के फॉर्म में लिया है वो खुद भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है,
तो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ये, दिस इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और ये खुद भी एक ऑक्सीडाइजिंग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सम अमाउंट ऑफ टाइट्रेट को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो अगेन जब आप वॉल्यूम निकालोगे वो भी गड़बड़ आएगा। ओके, सो वी कैन नॉट यूज HNO3। क्लियर है? लिखो ये जल्दी से। और पर मैग्नेट टाइट्रेशन में MnO4 जो है वो आपका सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है ना, आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस, तो अलग से लिखा नहीं है, तो चाहे तो यहाँ पे लिख लो MnO4 माइनस itself acts as self indicator and change of color from pink purple, pinkish purple color होता है, so pink purple into colorless tells about the end point of the reaction. Write down this. और MnO4 का जो आपको यूजुअली आप जो ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन करने के लिए, तो यूजुअली Fe के लिए यूज होता है, दैट यू नो Fe+2 को Fe+3 में यूज करेंगे, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सलेट के लिए यूज होता है, C2O4 2- को CO2 में कन्वर्ट करेगा, ये सब आप पढ़ चुके हो। H2O2 के लिए भी यूज करते हैं, दैट इज योर O2 में कन्वर्ट होगा, बैलेंस करने के लिए कर लो, यहाँ पे 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। देन यूजुअली SO3 2- को लाइक सल्फाइड को सल्फेट के लिए यूज हो जाएगा, SO4 2-, इसको भी बैलेंस कर लो, यहाँ पे एक H2O ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सारे जो है KMnO4 के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा आपके पास, KMnO4। जस्ट टू मेक योर नोटबुक लुक ब्यूटीफुल कि सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन राइट डाउन दिस। शुक्ति का वो बैलेंस किया है, 5 is just to balance the reaction. n फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, या फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ भी करना चाहते हो, वो भी करके बैलेंस कर सकते हो। आई हैव ओनली बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। चलो डन राइटिंग। एक क्वेश्चन करो फिर छोटा सा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ semi-molar acidified
KMnO4 solution required to oxidize 0.304 ग्राम ऑफ FeSO4। बताओ कितना आंसर आएगा, फ्रैक्शन में ही बता देना। चलो आई एम डिस्कसिंग, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या यूज कर रहे हो इसमें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर एसिडिफाइड KMnO4, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू ऑक्सीडाइज this gram of FeSO4 reducing agent. So equivalence of KMnO4 will be equal to equivalence of FeSO4. दोनों को कर दो इक्वेट। इक्विवेलेंस के लिए आपको यहाँ मोलैरिटी गिवन है, सेमी मोलर मतलब 1/2, एन फैक्टर कितना होता है KMnO4 का 5, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको मास गिवन है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, तो मोल्स के लिए 0.304 डिवाइडेड बाई मोलर मास जो है यहाँ पे वो कितना है, FeSO4 का होता है आई थिंक 152 इफ आई रिमेम्बर, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर मोल्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर दैट इज योर 1, और यहाँ से निकाल लो वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मिलीलीटर यहाँ से मिलीलीटर का आंसर आएगा ना। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक मिलीग्राम्स में। मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीलीटर में आ जाएगा, अदरवाइज ये लीटर में आएगा। और लैब में हम जो भी काम करते हैं वो मिलीलीटर में ही होता है, ना कि लीटर में, तो यूजुअली हम इसको मिलीलीटर में ही रखेंगे। तो ये जो आपके पास सेमी मोलर जो भी चीजें आती है वो भी मिलीलीटर के लिए ही है, तो मिलीलीटर निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो टू चेंज इनटू मिलीग्राम्स। तो ये आंसर हो जाएगा, कितना आ रहा है, 1152 4/5 आई गेस, एक बार चेक कर लेना। गॉट इट? Today class is for 2 hours by the way, है ना? In the previous class I could not take the class for like last 15-20 minutes was left, so I have messaged that in the group that next class will be for 2 hours. Okay, so next question is your 25 grams sample of ferrous sulfate FeSO4.7H2O dissolved in water and dilute H2SO4 and volume was made up to 1 liter. 25 ml of solution
required 10 ml of 0.04 molar KMnO4 solution for complete oxidation. Find the percentage of FeSO4.7H2O in the sample. ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे. आई वांट दैट यू पीपल गिव अ रीड टू दिस क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, डन रीडिंग है ना. चलो, पहले बोला 25 ग्राम्स ऑफ सैंपल ऑफ फेरस सल्फेट. सैंपल अगर आया है तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ फेरस सल्फेट नहीं है, कुछ और भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तभी सैंपल बोला है. अदरवाइज क्या बोला, 25 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट. सैंपल बोला है मतलब देयर माइट बी सम इम्प्योरिटी. ओके, डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया और वॉल्यूम बना दिया 1 लीटर तक. डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिडिफाइड करने के लिए बस, और कुछ काम नहीं है इसका. अब हमने इसी सॉल्यूशन का 25 ml जब हम ले रहे हैं तो 10 ml ऑफ 0.04 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ रही. ओके, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन. इस सॉल्यूशन का जिसमें FeSO4 पड़ा हुआ है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ठीक है, अब आपको यही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ FeSO4 इस सैंपल में प्रेजेंट है. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कौन सा टाइट्रेशन है, पर मैंगनीज टाइट्रेशन. सो यू नो दैट इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4.7H2O will be equal to equivalence of KMnO4. ये तो सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. KMnO4 के इक्विवेलेंस निकालने के लिए हमको मोलारिटी गिवन है, दैट इज 0.04. उसको हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मुझे क्या दे देगा, नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है, हम ले रहे हैं 10 ml. तो मिलीलीटर में है तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंस कर दो, यहाँ पे भी मिली इक्विवेलेंस कर दो क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में. फाइन. अब अगर हम इसकी बात करेंगे FeSO4 के लिए, तो आपको पता है कि इसमें ऑक्सीडाइज होने वाली चीज कौन सी है, सिर्फ आयरन. Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होगा, तो n फैक्टर हो गया इसका 1. और मुझे क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है. परसेंटेज निकालने के लिए मुझे मोल्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिली मोल्स, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो मिली मोल्स के रेस्पेक्ट में ही आएगा. दोनों इक्विवेलेंट्स का ही फॉर्मूला है, ये भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है. यहाँ पे मैंने N1V1 यूज कर लिया है और यहाँ पे n फैक्टर इनटू मोल्स यूज कर लिया है. कुछ भी यूज कर सकते हो बिकॉज इक्विवेलेंट्स तो सेम ही रहेंगे, उस पर कोई चेंज आने वाला नहीं है. नाउ दिस विल हैव मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, 2 मिली इक्विवेलेंट्स ओके ऑफ KMnO4. तो हमारे पास 2 इक्विवेलेंट्स है यहाँ पे फॉर दिस KMnO4. यहाँ पे है 1 इंटू मिली मोल्स. ये लेकिन किसके लिए था, 25 ml के लिए है ना. क्वेश्चन क्या था, फॉर 25 ml ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड. तो 25 ml के लिए मुझे इतने मिली इक्विवेलेंट्स लग रहे हैं KMnO4 के लिए, बट मैंने सोल्यूशन कितने वॉल्यूम तक किया था, अप टू 1 लीटर. तो मुझे किसके लिए निकालना पड़ेगा, अप टू 1 लीटर के लिए. ठीक है, तो सिंपली अगर 25 ml के लिए मेरे को 2 मिली इक्विवेलेंट्स लग रहे हैं, तो 1000 ml के लिए, दैट इज 1 लीटर के लिए कितना लगेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 25. सॉरी उल्टा कर दिया, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 1000 होगा. 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1000 मिली
इक्विवेलेंट्स किसके लगेंगे हमको, KMnO4 के। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो वैल्यू कितनी आई, 1000 ml में मुझे कितने मिली इक्विवेलेंट्स लग रहे हैं, 80 मिली इक्विवेलेंट्स। और इसको मैं इक्वेट कर दूंगी 1 इंटू मिलीमोल से, तो 80 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, विच इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑल टुगेदर कितना निकल के आया, 80 मिलीमोल्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो हम क्या करेंगे, 80 इंटू 10⁻³ मोल्स, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे ऑल टुगेदर। तो मिलीमोल्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से अब आप वेट निकाल लो, वेट कितना हो जाएगा, जो भी आपके पास मोल्स आया, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, FeSO4 का मोलर मास आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा, FeSO4.7H2 पूरा ऐड करके जब निकालोगे तो आएगा इट इज 278। तो ये आ गया आपके पास वेट, और आपको परसेंटेज निकालना था। तो जो भी FeSO4 का वेट आया 80 इंटू 10⁻³ इंटू 278 होल डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना था, स्टार्टिंग में 25 ग्राम्स लिया था, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज। इज दिस क्लियर? एसिडिफाइड मीडियम करने के लिए प्रेशर्स की आपको बोला है ना कि H2SO4 का जस्ट एसिडिफाइड किसी ना किसी मीडियम में रिएक्शन होगी, या तो एसिडिफाइड मीडियम में या बेसिक मीडियम में। सो वी हैव टेकन ओनली एसिडिफाइड मीडियम। गॉट इट एवरीवन? ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें एक ही ट्रिक था, वो ये था कि 25 ml के लिए आपने मिली इक्विवेलेंट निकाला है, बट आपको निकालना है 1000 ml के लिए, बस। दिस इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन, नथिंग एल्स। राइट डाउन दिस। Done writing? Now let's talk about back titration. Back titration is like very easy सा concept, ठीक है? जैसे मान लो मैं कोई टाइट्रेशन करा रही हूँ जिसमें एसिड और बेस ले रही हूँ, ओके? एसिड का इक्विवेलेंस हो जाएगा लेट्स से N1V1, ओके? और बेस का मान लेते हैं N2V2, और ये हमने बहुत एक्सेस में लिया हुआ है थोड़ा सा। जब इनके बीच में रिएक्शन हुआ, दिस इज योर फर्स्ट टाइट्रेशन। जब आप इनके बीच में रिएक्शन करोगे तो एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लिया, जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा, मैं एग्जांपल लेके नहीं चल रही हूँ, जनरल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बेस आपके पास बच जाएगा, दैट इज योर रिमेनिंग बेस। ये हम एक्चुअली मान लो ब्यूरेट एंड एवरीथिंग लेके नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉनिकल फ्लास्क में ही रिएक्शन हो रही है। तो एक्सेस में हमने ये लिया हुआ है काफी ज्यादा, तो कुछ ना कुछ बच जाएगा इसमें। अब वो बचेगा कितना, N2V2 था इक्विवेलेंस, माइनस जितना N1V1 होगा एसिड का, उतना ही बेस के साथ सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट किए होंगे, माइनस N1V1। तो ये आपके पास रिमेनिंग हो गया। अब इस रिमेनिंग को अगर आप वापस से टाइट्रेट कर दो बेस से, सॉरी एसिड से, दिस इज योर टाइट्रेशन 2। तो टाइट्रेशन 2 में हमने इसको वापस से किसी एसिड के साथ टाइट्रेट कर दिया, जिसका मान लेते हैं इक्विवेलेंस है N3V3, ओके? तो बस यही बैक का मतलब क्या हुआ, पहले
बेस का एसिड के साथ टाइट्रेशन किया, फिर मतलब एसिड को बेस से टाइट्रेशन किया, फिर बेस का एसिड से टाइट्रेशन किया, तो इसको हम बोल देते हैं बैक टाइट्रेशन, बाकी कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये एसिड जो है वो सेम एसिड भी ले सकते हो और डिफरेंट भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको सेम लेना है आप सेम ले लो, आपको डिफरेंट लेना है डिफरेंट ले लो, ठीक है। ये हम लिमिटेड अमाउंट में ही लेते हैं, इसको एक्सेस में नहीं लेते। ये लिमिटेड मतलब उतना ही लेंगे जितना हमारे पास एक्स्ट्रा बेस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जाके आपको क्या मिल जाएगा अब एंड पॉइंट फॉर बेस। तो ये वही टाइप के क्वेश्चंस हो गए जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने जहाँ 2 एसिड लिया था और एक बेस लिया था और उसके इक्विवेलेंट्स इक्वेट किए थे, सारे एसिड को एक तरफ और सारे बेसिस को एक तरफ। तो बस यहाँ पे भी वही करना है। अब जब आप इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो हम लिख देंगे टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो कभी कोई क्वेश्चन पढ़ो और वहां पे बैक टाइट्रेशन का टर्म आ जाए तो उससे डर नहीं जाना है कि ये क्या है, नथिंग, बस हमने कोई भी चीज एक्स्ट्रा में ले लिया। दिस इज एट एंड पॉइंट। गॉट इट? लिख लो इसको। तो आप क्लियरली देख सकते हो, द मोमेंट यू अंडरस्टूड द टर्म टाइट्रेशन, उसके बाद सब चीजें जस्ट सिंपल, सब एक जैसा ही है, बस नाम अलग है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो इसके बेस पे। 5 ग्राम sample of CaOH whole twice is dissolved in 50 ml of 0.5 normal HCl solution. Now excess of HCl is back titrated with 0.3 normal NaOH and its volume used is 10 ml. Calculate percentage purity of CaOH holders. फटाक से क्वेश्चन को जस्ट रीड करो, देन आई विल लेट यू नो कैसे सॉल्व करना है। Okay, look here now. Question is saying that you have 5 gram sample. Again 5 gram sample बोला तो मतलब CaOH2 जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, कुछ impurity present है। Dissolved in 50 ml of 0.5 normal HCl solution. ठीक है, HCl solution किया। अब ये हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट हो गया, तो इस एक्सेस को मैंने वापस से 0.3 नॉर्मल NaOH के साथ टाइट्रेट कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको एक्सेस में बेस लिया था, आप एक्सेस में एसिड भी ले सकते हो, जो आपका मर्जी आ जाए वो आप ले सकते हो, कॉन्सेप्ट इज सेम ओनली। और आपको ये पूछा है कि कितना परसेंटेज प्योरिटी है CaOH होल ट्वाइस का। अब क्वेश्चन जब आ रहा है परसेंटेज प्योरिटी का, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कितना मतलब वेट निकालना पड़ेगा आपको ऑल टुगेदर। बस कॉन्सेप्ट वही है, आप मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो कि एसिड है, सारे एसिड की एक तरफ कर दो, और मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस। HCl आपने कितना लिया हुआ है 0.5 इंटू 50, इक्विवेलेंस निकालोगे, नॉर्मल है और वॉल्यूम है तो N1V1। मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH में NaOH आपको गिवन है 0.3 और वॉल्यूम गिवन है 10,
ml में है तो मैं मिली इक्विवेलेंट्स लिख रही हूँ, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH जो है आपको निकालना है। उसका आपको कुछ पता नहीं है कि कितना है, बट ठीक है, मोल्स, अब क्योंकि हमको वॉल्यूम नहीं पता उसका, तो हम इसको मोल्स वाले फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, लाइक मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो CaOH का n फैक्टर होता है 2। मोल्स निकालने के लिए मुझे वेट नहीं पता कितना है, बट मोलर मास होता है इसका 74। अब क्योंकि ये ग्राम्स में हम करते हैं सारी चीजें, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ जस्ट टू मेक इट इनटू मिलीग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टू कन्वर्ट, ताकि बाद में कभी डाउट ना हो, इनटू मिलीग्राम्स। बस अब इन सबको आपको ऐड करना है और W के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो W here will be equal to 5, 22, ठीक है। ओके, दिस विल बिकम 22 into 37 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा, वेट आएगा। अब आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना CaOH बॉन्ड वाइज की प्योरिटी थी, तो जो भी उसका वेट आपने यहाँ से निकलाया है, W डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था हमारे पास 5 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज। गॉट इट? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश कर सकता है क्वेश्चन में, बट अदरवाइज थिंग्स आर लाइक रियली इजी। चलो नेक्स्ट इज योर, वी स्टिल हैव 7-8 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम जो टाइट्रेशन की बात करेंगे वो है हमारे पास डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला ही है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डाइक्रोमेट वाले भी क्वेश्चन आपको अलग से पूछे जा सकते हैं। सो इन दिस केस K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अभी हमने KMnO4 वाला देखा, परमैंगनेट वाला, अभी हम डाइक्रोमेट आयन देख रहे हैं। सो K2Cr2O7 हियर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, और आपको पता ही है हम क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे डाइफेनाइल अमाइन is used as an indicator। जैसे एसिड बेस के लिए हम फेनोल्फथालीन ले रहे थे, परमैंगनेट के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा था। डाइक्रोमेट के लिए हमको डाइफेनाइल अमाइन यूज करना पड़ता है एज एन इंडिकेटर, which becomes blue in color at the end point। और डाइक्रोमेट को हम कौन कौन से टाइट्रेशन में यूज करते हैं, अगेन जैसे कि MnO4 को हम Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे, बैलेंसिंग के साथ लिख रही हूँ, इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगेन C2O4 2- को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम डाइक्रोमेट का। क्वेश्चन में कोई भी रिएक्शन आ सकता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। I- को I2 के लिए भी यूज किया जा सकता है, बैलेंस कर लो। या फिर अगेन SO3 सल्फाइड को सल्फेट के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैं ये बैलेंस करके लिख रही हूँ बस, कुछ भी। तो ये हमारे पास सारे क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, K2Cr2O7। और उसके बारे में आपको पता ही है कि Cr2O7 2- जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, क्रोमियम+3 में। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 7H2O, जितना वाटर बैलेंस किया उतना ही 14H+ आयन यहाँ बैलेंस कर दोगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है इसका एन फैक्टर कितना होता है, 6। दैट इज योर फिक्स, आप पढ़ चुके हो।
अब अगर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि एग्जैक्टली हम टाइट्रेशन में कैसे करते हैं, सेम चीज है, ब्यूरेट पिपेट वही चीजें होने वाली है। सो 1 सेकेंड, ये हमने ले लिया स्टैंड, स्टैंड से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया ब्यूरेट को, यहाँ पे उसका नॉब है और इधर वी हैव कॉनिकल फ्लास्क। ओके, ब्यूरेट में हम फिल करते हैं K2Cr2O7, दैट इज योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, नोन रहेगा, इट इज अ नोन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मान लेते हैं हम आयरन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट ले लो आप चाहे तो, FeSO4, तो आपको Fe+2 का बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज योर अननोन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। एनीवेज आपको एग्जाम में उस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ खास आएगा नहीं, ठीक है, बट हम यहाँ पे इंडिकेटर जो यूज कर रहे हैं वो एक्सटर्नल यूज करते हैं कई बार। ठीक है, तो जब आप ये रिएक्शन कराओगे, ऊपर से आपने ऐड किया, अभी हमने देखा कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो डाइफिनाइल अमाइन, जो भी आप इंडिकेटर ले रहे हो, इंडिकेटर याद करने की जरूरत नहीं है फॉर दैट मैटर। तो ये सारे इंडिकेटर्स हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, एक मैंने लिखा दिया उतना आपको काफी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो तो हम ऐसे टाइम्स लेते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर होता क्या है, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं। जब आपको लगता है कि एंड पॉइंट आ गया होगा, ओके, देन लाइक रिएक्शन करते हुए धीरे धीरे कलर चेंज आएगा, तो अब जब आपको पता चलेगा कि एंड पॉइंट आ गया होगा, तो यहाँ पे हम एक ड्रॉप ले लेते हैं, मान लो दिस इज बिफोर एंड पॉइंट, और यहाँ पे एट एंड पॉइंट, तो हम एक ड्रॉप ले लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन का, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे ऊपर से इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है वो हम अलग से ऐड करते हैं इसमें, तो ऊपर से जब हम इंडिकेटर ऐड करेंगे, अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, एंड पॉइंट तक हम नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में कुछ Fe+2 आयन प्रेजेंट होगा, और ये Fe+2 आयन जो है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके प्रूशियन ब्लू कलर दे देता है। ठीक है, एट एंड पॉइंट देयर इज नो Fe+2 आयन लेफ्ट, कोई भी Fe+2 आयन लेफ्ट नहीं होगा, वो तो कंप्लीटली रिएक्ट हो चुका होगा, तो यहाँ पे नो चेंज मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम कई बार पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो है वो चेक करते हैं कि एंड पॉइंट आया है कि नहीं आया। जो प्रूशियन ब्लू कलर होता है वो आता है K3FeCN6 की वजह से। अभी अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट अल्टीमेटली 12th तक ये चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, कलर एंड एवरीथिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आया? इसमें थोड़ा सा H2SO4 भी डालो एसिडिफाइड मीडियम करने के लिए। ओके, राइट डाउन दिस। इसमें जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम इधर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बट ये जो एग्जांपल मैंने आपको देके बताया दैट इज फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। राइट डाउन दिस।